السلام علیکم میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں. تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم منور زامہ کی گرفتاری کے اوپر جو عمران پرتاپ گڑھی نے ایک بہت درد بھری نظم سنائی ہے. کیا منور زامہ کی یہی غلطی تھی کہ وہ ہندو اور مسلمان دونوں کے بچوں کو کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، ہر ایک غریب بچے کو تعلیم دیتے تھے، موٹیویشنل اسپیچ دیتے تھے؟ کیا یہی غلطی تھی؟ آخر کب تک چن چن کے جیل میں لے جاؤ گے؟ کب تک چن چن کر مرڈر کرو گے؟ یہ قوم ختم ہونے والی نہیں ہے. ارے انگریز تو کیا، آج کے ٹائم میں یہاں انگریزوں کے بھی باپ پیدا ہو گئے ہیں. تو اتنے اچھے انسان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو ہمیشہ غریبوں کے حق میں ہوتے ہیں. وہ کسی ہندو مسلم کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے. تو جڑے رہیے انت تک میری اس ویڈیو میں. بنا دیر کیے ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے جاری رکھتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایک درد بھری بڑی پینفل نظم کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو فل واچ کریں گے اینڈ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں گے. ایسے بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جن بچوں نے اس اعتراف میں اچھے نمبر لا کے اچھے مارکس لا کر کے اپنے ماں باپ کا، اپنے علاقے کا، اپنے وارڈ کا نام روشن کیا ہے. یہاں شمیمہ بانو جو ایکس کاؤنسلر ہے وہ تشریف فرما ہے میرا خیال ہے، لیکن یہاں کھڑا ہو کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ 4 مصرے پڑھ دوں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا. ایسے کام نہیں چلے گا. اتنا پسینے میں کھڑا ہو جاؤ، یہاں آتے ہیں تو پسینہ بہت نکلتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اتنی انرجی ہے اس جگہ پر، اتنا فائر ہے اس جگہ پر کہ آپ بیٹھو تو آپ سکون سے بہت سافٹ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے. تب مجھے لگ رہا ہے کسی کا شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹھ جاتا ہے. محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے، لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. آپ میری محبت میں کھڑے ہیں، میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. نہیں، میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آپ پانی پلانے لگو، ہوا دینے لگو. ایسی کوئی ضرورت نہیں. اتنا کمزور نہیں ہوں، موم کا پتلا نہیں ہوں. ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ یارو، پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں آئے ہیں. کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا. میں کوئی نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہوں. ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرے تو یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے مجھے چوتھے مصرے پہ. کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا. شپر والا بابی سو جائے. آپ کے خلاف سازشیں کتنی ہیں، آپ کے بھائی کے خلاف، آپ کے محبت والے رہنما کے خلاف اتنی سازشیں کیوں ہیں؟ مجھے کسی نے قصہ سنایا ہے کہ ایک جگنو جنگل میں سکون سے رہتا تھا، شام ہوتی تھی چمکتا تھا، اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا. ایک سانپ اسے بیٹھ کے لگاتار دیکھا کرتا تھا. ایک دن سانپ کو پتہ نہیں کیا سوجا، اس نے سوچا یہ جگنو یہ تو روشنی دے رہا ہے، آج تو اسے نگل ہی جاؤں گا. وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. جگنو آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے بھاگتا رہا. جگنو کو لگا میں کتنا بھاگوں گا. پھر اس نے سوچا مجھے پلٹ کے پوچھنا چاہیے اس سانپ سے کہ بھائی کیوں دشمنی کیوں. وہ پلٹا، اس نے سانپ سے کہا بھائی تم مجھے
मुझे निगलना चाहते हो निगल लेना, मेरे 2 सवाल हैं उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे ज़मीर की आवाज रोक लेती है। हम ज़मीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज़्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं। आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं। तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 MP, 146 MPs एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज़्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज़्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शाहपुर वालों? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का 2 हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा है। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे
बदतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये भी सुने कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए। वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीफ ये बता देगी, तुमको तारीफ ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो चार मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए, क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना? देखेंगे भी। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहे, ये कमजोर ना
करता है। अंत में मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।